अच्छा जी, हमारे पास आ गया। रिजल्ट वर्सेस डिस्कशन। हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू बात करते हैं। और अब बाकी लोग भी नहीं आए। मैसेज कर दिया उन्हें। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ डिस्कशन। अच्छा भाई, एग्जाम्पल ऑफ डिस्कशन। Make it critical clear to the reader which statements are observation and which are interpretation. Physically separate statement about the observation from statement about the meaning or the significance. Physical separation into different section or paragraph. Don't overlay interpretation on top of data and figures. On top of interpretation on top of data and figures. Can be accomplished by careful use of phrases such as I infer. Don't worry if results seem short. यानी इसमें से जो आपने चीज़ें अखज़ की हैं उसको आप फ्रेज के अंदर इस तरह मेंशन कर देंगे, मैंने इससे ये नतीजा अखज़ किया। आई अनफर द रिजल्ट फ्रॉम दिस। आप इस तरीके से जो है वो इसको कर सकते हैं। Example of discussion. In order to use the previous encoding scheme, the length of the watermark character need to be stored along with watermark. This situation has added length to be encoded watermark. However, by using proposed encoding scheme, the bit needed for embedding process is always constant and fixed according to the size of hash value. Or hash value in this proposed encoding scheme is equal to 128 bit and always constant for each character length that was tested. Even though the length of the watermark is varies after encoding process, length of encoded watermark is fixed and always 128 bit. The number of bit sequence need to be number of instruction on dummy method. The situation reduces the suspicious dummy method towards conclusion attack. Hence, in terms of data rate, proposed method produce same number of bit sequence compared to the previous encoding. So it can be concluded that proposed method does not affect the number of line coding in the method and prove to be high in data rate. It has resulted in enhanced code. यानी डिस्कशन के अंदर आपने इंटरलेट कर रहे होते हैं कि प्रीवियस ने क्या काम किया, मैंने क्या किया, और उसमें अगर कोई चीज़ बेनिफिशियल जैसे शो करी हो कि इसमें कॉस्ट भी नहीं बढ़ी लेकिन रिजल्ट भी इम्प्रूव हो गया, तो इस तरह आपने डिस्कशन कर हुए होते हैं। यानी जिस एंगल से इम्प्रूवमेंट हो रही होती है आप उस एंगल को डिस्कस कर रहे होते हैं। और अगर अब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होती है कि आपने किसी अप्रोच को एनहांस तो किया लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशन वो हो सकता है बढ़ गई हो कि वो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटेशन कास्ट उसकी बढ़ गई हो। तो ये आपने उसका जो जो चीज़ें होती हैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव वो आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। Start with few sentences that summarize the most important results. Result section should be brief essay
in itself. Answering the following question and caveats. What are the major pattern in the observation? Refer to spatial and temporal variations. What are the relationship, trend and generalization among the results? What are the exception to these pattern or generalization? यानी अगर उसमें कोई चीज नहीं वो फॉलो कर रहा है, कोई exceptional केस है वो बताए. What are the likely cases underlying these patterns resulting predictions? तो कोई चीज predict इससे हो रही है, मैकेनिज्म को बढ़ रहा है तो एक्सप्लेन करें. In these agreement and disagreement with previous one. अगर आपका काम पिछले के काम के साथ ही का जैसा है तो आप वहाँ पे एग्रीमेंट शो कर रहे होंगे, और अगर उससे डिफरेंट है तो डिसएग्रीमेंट शो करेंगे, यानी प्रीवियस के काम को भी साथ के साथ में रिलेट कर रहे होंगे. इंटरप्रेट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड लेड आउट इन द इंट्रोडक्शन. Interpret result in terms of background laid out in the introduction. What is the relationship of present result to the original question? यानी वो जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए होते हैं उनके साथ भी अपने रिजल्ट्स को रिलेट कर रहे होते हैं. व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट रिजल्ट फॉर द अदर अनआंसर्ड क्वेश्चन. और जो रिजल्ट्स हैं वो चीज़ें जो अनआंसरेबल थी, जो अभी तक आंसर नहीं हुई, उनके साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं कि जनाब इस रिजल्ट ने इस चीज़ को भी आंसर कर दिया, इसको भी आंसर कर दिया, इसको भी आंसर कर दिया. इस तरीके से जो है आप डिस्कस कर रहे होते हैं. मल्टीपल हाइपोथेसिस. मल्टीपल हाइपोथेसिस में क्या है जी कि देयर आर यूजुअली सेवरल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल अवॉइड bandwagons. A special case of the above. Avoid jumping currently. सर ये डिस्कशन कितनी लेंथी होनी चाहिए सर? बाद में हाथ उठा के फिर वापस नीचे कर लिया. क्यों भाई, क्या क्वेश्चन था? हेलो सर. Multiple hypotheses. There are usually several possible explanation for the. आप वैसे माइक पे बात कर सकते हैं, आप 4-5 लोग तो हैं, कोई ऐसा श्योर नहीं होगा. Multiple hypotheses. There are usually several possible explanations for result. Avoid bandwagons. Avoid jumping a currently fashionable point of view use unless your result really too strongly support them. यानी वो जैसे कहते हैं ना कि अगर तो आपके रिजल्ट कोई चीज़ बता रहे हैं तो आपको बता दें. ऐसे ही नहीं पढ़ना कि फलां स्टडी में पढ़ा तो उसके रिजल्ट को ऐसे शो किया तो चलो मैं भी वैसे ही कर दूँ. ऐसे नहीं करना. वो जो फैशन के पीछे जो है ना वो फैशन फोबिया वाला काम नहीं करना. What are the things we know or understand that we didn't know or understand before the present one? जो रिजल्ट से जो नई चीज़ जो बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा हुआ है वो आपने बताना है. इंक्लूड एविडेंस और लाइन ऑफ रीजनिंग सपोर्टिंग ईच इंटरप्रिटेशन. तो आपने उसका एविडेंस भी वहाँ पे बताना है कि जनाब मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसकी रीज़न क्या है, उसकी रीजनिंग बतानी है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंट रिजल्ट, व्हाई शुड वी केयर, कि इसमें इस काम की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है. दिस सेक्शन शुड बी रिच इन references to similar work and background needed to interpret result. This section should be rich in references to similar work and background needed to interpret result. यानी इसके अंदर हवाले चल रहे होते हैं कि बैकग्राउंड क्या था और एग्जिस्टिंग लोगों ने क्या किया था, यानी उनके हवाले दे दे के आप डिस्कस कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. सर एक क्वेश्चन है. इन साइंटिफिक डिसर्टेशन सर मैं ये पूछना चाह रहा था उस टाइम पे कि सर ये डिस्कशन कितनी लेंथी होनी चाहिए, मतलब सर उसमें मतलब कितने पेज का सर होना चाहिए डिस्कशन? जैसे वो मंजन बेचने वाला नहीं होता वो वाला काम नहीं करना है. आपने वो सिर्फ
रिजल्ट्स देने हैं, उसमें ये नहीं बताना, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चीज़ें बताना कि इस रिसर्च से ये फलां चीज़ हो गई, फलां चीज़। A scientist must remain objective about the merits of her work independent of its commercial impact. Commercial impact की तरफ नहीं जाता. In particular, scientists never assume that commercial success is valid measure of merit. और इसका हरगिज़ मतलब ये भी नहीं होता कि अस्सलामुअलैकुम रिसर्च सर। कामयाब तभी है कि जो इससे जो कमर्शियली जो फायदा हो. Statement like method wise is used सर in अस्सलामुअलैकुम products सर। by over 200 vendors don't belong in it. इसमें ये इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करती. Politics and science avoid all political influence when assessing idea. It should not matter obviously whether government bodies, political parties, religious groups, or other organizations endorse an idea or not. More subtle and easier to miss, it should not matter whether idea originated with a scientific who has won the Nobel Prize with a first year graduate student. तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आइडिया ओरिजिनेटेड, ये आइडिया जब फलां साइंसदान ने उठाया था और वो उसको नोबेल प्राइज मिला था, ऐसी कोई always assess an idea independent of its सोर्स से हट के कि ये किसने जनरेट किया था, ओरिजिन इसका क्या था, ये चीज़ें मैटर नहीं करती. उसके बाद है कंक्लूजन चैप्टर. रीजनेबल साइज शॉर्टर देन अदर चैप्टर्स, usually cover introduction, summary of finding, contribution based on objectives to show that objective have been achieved, discussion and limitation, future research work. ये सारी चीज़ें कंक्लूजन में आती हैं. इंट्रोडक्शन है, फाइंडिंग की समरी है, कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव वाइज और डिस्कशन एंड लिमिटेशन है और फ्यूचर वर्क है. सारी चीज़ों को समराइज करके कंक्लूजन में लिखते हैं. What is the stronger and the most important statement that you can make from your observation? Be reflective and honest. अब ऐसे नहीं करना कंक्लूजन में जो आपने ज़मीनों आसमान के खिलाफे लगाए होते हैं और बीच में कुछ होता ही नहीं है. What were the lesson learned? What were the overall insight? Did you solve the problem completely? How much progress have been made in your field because of your work? If you met the examiner at a meeting 6 months from now, what do you want them to remember about your thesis? What do you want them to remember about your thesis? Refer back to problem posed and describe in conclusion that your research from carrying out these investigations summarize new observation, new interpretation, and new insight that have resulted from the present work. Include proper implication of ये जो बात लिखी है ना, रेफर बैक टू प्रॉब्लम प्रपोज डिस्क्राइब कंक्लूजन, ये इसके अंदर है कि आपने क्या प्रपोज की थी, क्या चीज़ हुई, ये तो ठीक हो गया. इसमें इफ़ यू मेट द एग्जामिनर एट ए मीटिंग 6 months from now, what do you want them to remember about your thesis? आपने ऐसी क्या चीज़ डाली है कि उसको याद रही होगी 6 महीने पहले की बात. Draw only warranted conclusion. Even if the cause of some phenomena seem obvious, don't draw conclusion without solid evidence. For example, if program run much slower on computer A than computer B, you cannot conclude that the processor in A is slower than the processor you use unless you have ruled out all the difference in the computer operating system, input, output devices, memory size, memory cache. यानी अगर ये सिर्फ मुंह उठा के ये नहीं कहना जो फलां कंप्यूटर से स्लो था इस वजह से उसका रिजल्ट सही है, या तो फिर आप सारी डिटेल तो मैंने बताएगी किताब क्या क्या इतनी थी इसमें, इतनी थी इसमें, कैशे इतनी थी बेस इसमें, बच्चा इतनी थी, उसका आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये था इसमें, तो सारी चीज़ें डिस्कस करके आप फिर ये कह सकते हैं. You must refrain from such judgment until you have conducted careful, controlled experiment. ये चौथी बार जब तक आपके पास कोई एविडेंस इन टर्म ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ना हो, उस वक्त तक आप ये बात नहीं कह सकते. Recommendation for future work: think of what you would do if you had an extra year in your field. तो ये फ्यूचर वर्क वो होगा अगर आपको 1 साल और दिया जाए और आपको कहा जाए आगे काम करो, तो आप आगे क्या काम करोगे, वो आपका remedial action to solve the problem, further research to fill the gap in our understanding, direction for future investigation on this are
related topics. Think up to 3 year follows on PIT, etc. You can envision. Referencing, keep a database of complete references, use consistent citation style, use a tool, BibTeX, Refer, EndNote, ProCite, or whatever. New tool, Mendeley, Zotero, Cite you like. Attention to detail is important. Get the spelling right. Keep complete reference, page number, volume number, editor name, location, and date for conference, proceeding, etc. List all references cited or referred to directly in the body of report. Organize alphabetically by author, surname, or by order of citation in the thesis numbering format. APA format index and take the following say, reference in text. इंडेक्स के अंदर वो जैसे मैंने पहले बताया था जो चीज़ ज़रूरी है और डिटेल वाली है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आगे जो है वो ये तो था ना थीसिस राइटिंग है, आगे जो है वो पेपर राइटिंग, जर्नल राइटिंग है, पेपर राइटिंग वो आ रहा है हमारे पास, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए जी अभी आपकी अटेंडेंस लगा लेते हैं। अटेंडेंस में सारे लोग हैं जी, सारे लोग हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लें, फिर नहीं कहना क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दिया। जी भाई क्या आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है कोई आपको? क्वेश्चन नहीं है? क्यों भाई कोई क्वेश्चन नहीं है? अब्बास ने हाथ उठाया जी। अब्बास एक्सट्रोवर्ट क्या कहते हैं जी? आई एम डूइंग दैट बट आई थिंक माय वॉइस इज नॉट क्लियर एट योर साइड। हाउ मच पेजेस मस्ट डिसर्टेशन सेक्शन कंटेन? ये जो है ना ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। जैसे एमएस के लिए 70 पेजेस था और एमफिल के लिए मेरे ख्याल शायद 300 पेजेस का। इसको रिकन्फर्म किया जा सकता है। मुझे कंफर्म इस तरह नहीं याद है कि मेरे से एक तो हमें कोई हमारे हाथ से भी कोई स्टूडेंट गुजरा नहीं है, एक बात। दूसरा जी चले मैं कंफर्म कर दूंगा कि कितने पेज हैं इसके। अच्छा उसके बाद हाउ मैनी पेजेस शुड द डिस्कशन सेक्शन कंटेन? ये डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। अब आप मटेरियल जो डिस्कशन वाला ज़्यादा है तो आप उसको वेरी कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड तो कुछ इसमें सच नहीं है कि इतने ही पेज होने चाहिए, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। वी आर आस्किंग क्वेश्चन बट वॉइस इशू, वी कैन लिसन टू यू। हाउ मेनी पेजेस शुड बी डिस्कशन सेक्शन कंटेन? ये बता दो दिया डिस्कशन योर ओन वर्ड देन व्हाई विल शेयर रेफरेंस? नहीं बात ये नहीं है रेफरेंस क्यों शामिल कर रहे होते हैं, हमारे अपने वर्ड्स ही होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, जब आप कोई बात कहते हैं तो उसका वो एक पेराया बनाते हैं कि बैकग्राउंड बनाते हैं कि जी बैकग्राउंड बना के आप कोई चीज़ बात कर रहे होते हैं जी फलां ने ये किया फलां ने ये किया और फिर हमारा ये हुआ, यानी उनको साथ लेके चल रहे होते हैं तो बात समझाना आसान होता है। इसलिए उसमें यानी वो बेशक बाज़ दफ़ा डिस्कशन के अंदर हम रेफरेंस नहीं भी डालते लेकिन डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं कि वो इतनी बात यानी इतनी मरतबा वो बात डिस्कस हो चुकी होती है। मतलब जब बैकग्राउंड आप स्टडी बना रहे होते हैं उस वक्त भी रेफरेंस के साथ बात हुई होती है।
फिर आप मेथोडोलॉजी बना रहे होते हैं, उस वक्त भी रेफरेंस पे बात होती है। तो डिस्कशन के अंदर अगर आप ये फील करते हैं कि रीडर को वैसे ही उस चीज़ की समझ है, उसको सिर्फ उसको याद दिलाने से उसको बात समझ में आ गई तो काफ़ी है। और अगर आप ये महसूस करते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई नई चीज़ है और रेफरेंस देना ज़रूरी है, तो आप डिस्कशन में रेफरेंस दे सकते हैं रिलेट करने के लिए अपनी बात को। और भाई चलो ठीक हो गया, चलिए फिर सेशन को स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।